Dear students, today we are going to discuss regarding capital rationing. So far as we have discussed earlier the various techniques of evaluating the investment worth of project. The two theoretically sound methods are net present value method and internal rate of return method. A project must be accepted if it yields a positive net present value or when its internal rate of return is higher than the firm's cost of capital. प्रिय छात्रों, आज हम कैपिटल राशनिंग पर चर्चा करेंगे। हमने अभी तक पूर्व में सैद्धांतिक रूप से नेट प्रेजेंट वैल्यू, शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति और आंतरिक प्रत्याय दर विधि का अध्ययन किया है। कोई भी परियोजना तभी स्वीकार की जा सकती है जब शुद्ध वर्तमान मूल्य से परिलब्धि जो है वो धनात्मक हो और आंतरिक प्रत्याय दर उच्च हो। We have shown previously that when the firm is not considering mutually exclusive projects and has enough funds to accept all profitable investments, the two methods yield same accept or reject results. To optimize its investment policy, the firm should accept all the projects till the marginal cost of capital is equal to the marginal rate of return. Thus, the marginal project to be accepted would be one whose internal rate of return is equal to the cost of raising the additional funds to finance it. Projects with rates lower than the marginal cost of the capital are unprofitable and should be rejected. The selection process utilizing internal rate of return is depicted as above. The rule thus developed is valid only when the firm is able to obtain necessary funds to finance all profitable projects. If the firm is unable to raise necessary funds, it will have to reject some profitable investment proposals. इस नियम की उपादेयता तभी है जब सभी लाभकारी परियोजनाओं के लिए आवश्यक कोष की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है या फर्म इस स्थिति में होती है कि कोष की उपलब्धि सुनिश्चित हो जाए। और यदि फर्म आवश्यक कोषों की उपलब्धता कराने में सक्षम नहीं होती है तो लाभकारी विनियोग प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकृत हो जाते हैं। Now we are going to discuss regarding reasons for capital rationing. Why capital rationing is essential, needful? Capital rationing may raise due to इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स। ये आंतरिक और बाह्य
कांस्टेंट या फैक्टर्स के तहत ये इसकी उत्पत्ति होती है। द सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल कॉज इज दैट imperfections of capital markets. Imperfections may be caused by deficiencies in the market information, by rigidities that hamper the free flow of capital between firms, and by a difference between the interest rate at which the firm can obtain capital in the market, the borrowing rate. Capital rationing is also caused by self-imposed restrictions by management. It is quite difficult sometimes to find a rationale for such restrictions. Various types of restrictions can be imposed by management. For example, it may be decided not to obtain additional capital by incurring debt. This may be a part of firm's conservative policy. Similarly, management may fix an arbitrary limit to the amount of funds to be invested by the divisional managers. Sometimes management resorts to capital rationing by requiring a minimum rate of return higher than the cost of capital. Whatever may be the type of internal restrictions, it has same effect as the external capital rationing. हम सभी अवगत हैं कि किसी भी संगठन में पूंजी संरचना का आधार समान नहीं होता है। प्रश्न उठता है कि पूंजी की कौन सी संरचना या किस प्रकार का स्ट्रक्चर संगठन के लिए लाभदायी होगा। संगठन में ऋण पूंजी की प्रधानता होगी अथवा अंश पूंजी की प्रधानता होगी। दोनों प्रकार की पूंजी की अपनी विशेषताएं हैं और दोनों प्रकार की पूंजी की अपनी विशेष लागत होती है। ऋण पूंजी के रूप में प्राप्त पूंजी पर प्रतिवर्ष निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करना आवश्यक हो जाता है, चाहे फर्म लाभ में हो अथवा अलाभकारी दशा में हो। अतः दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऋण के माध्यम से प्राप्त पूंजी की एक निश्चित लागत होती है। संस्था के लाभदायकता में वृद्धि हो जाने की दशा में भी एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान कंपनी को करना पड़ता है, संगठन को करना पड़ता है। संगठन के अधिक लाभदायकता की स्थिति में ऋण पूंजी की लागत अपेक्षाकृत कम महसूस होती है, किंतु दूसरी तरफ अलाभकारी दशा में जब संगठन में हानि हो रही है, व्यापार में हानि हो रही है, उस दशा में ऋण पूंजी पर की जो लागत है, ऋण पूंजी पर जो ब्याज की देयता है, वो प्रायः भारी पड़ती है संगठन के लिए, कंपनी के लिए। दूसरी ओर अंश पूंजी है। हम सभी अवगत हैं कि समता अंश पूंजी धारक कंपनी के स्वामी होते हैं। इन्हें वोटिंग पावर होते हैं, मतदान का अधिकार होता है, कंपनी की सभाओं समितियों में बैठने का अधिकार होता है। ऐसी दशा में इन्हें लाभांश का भुगतान किया जाता है। किंतु कंपनी या व्यावसायिक संगठन यदि हानि की दशा में होता है तो यह प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है कि वो प्रतिवर्ष लाभांश की घोषणा करे। इसके साथ ही लाभांश का कुछ हिस्सा
प्रतिधारित भी किया जा सकता है, रिटेन्ड भी किया जा सकता है कंपनी के फर्दर ग्रोथ के लिए, भावी विकास के लिए, भावी नई तकनीक के प्रयोग के लिए, उत्पादकता में अभिवृद्धि के लिए कुछ हिस्सा रिटेन्ड भी किया जा सकता है। किंतु यदि कई वर्षों तक लगातार हानि होने की दशा में लाभांश का भुगतान अंशधारकों को नहीं किया जाएगा, उस दशा में धीरे धीरे कंपनी के अंशों की कीमत अनवरत घटती जाएगी और बहुत सारे अंशधारक उन अंशों को बेच करके और अलग कंपनी से अलग हो जाएंगे। ऐसी दशा में भविष्य में किसी भी कंपनी के लिए अंश पूंजी के माध्यम से पूंजी का संग्रहण कठिन हो जाएगा। खास तौर से ऐसी दशा में जब कंपनी अधिक लाभ अर्जित कर रही है, उस दशा में अंश पूंजी की लागत अपेक्षाकृत ऋण पूंजी के अधिक हो सकती है। नाउ it is must to know the selection process under capital rationing. When capital rationing is imposed, a firm would not be able to accept all profitable investment projects. Investment projects should therefore be ranked according to profitability, and the most profitable ones should be accepted subject to the budget ceiling. कैपिटल राशनिंग जब हम संस्था में इम्पोज करते हैं, उसको लागू करते हैं, तो सारे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को हम स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी रैंकिंग की जाती है, उनका श्रेणीयन किया जाता है और रैंक के आधार पर जो प्रॉफिटेबिलिटी जिनमें ज़्यादा होती है और जितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होती है, मीन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है तो उस दिशा में जो सबसे एफिशिएंट कैपिटल होती है, जिसकी लागत न्यूनतम होती है, ऐसी पूंजी को हम एक्सेप्ट करते हैं। द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग। द रीजन इज दैट it expressed profitability in absolute amounts. Thus, this method will give highest ranking to the project which yields highest per net present value. Now requires very high investment on a relative basis, that is, when the project's profitability index is calculated or the internal rate is found out. This may not be the most profitable project because the internal rate of return and profitability index are the relative measures of profitability. आंतरिक प्रत्याय दर और लाभदायकता इंडेक्स से सापेक्ष लाभदायकता का सापेक्ष मापन संभव हो सकता है। Then can be replied upon the purpose of ranking. It should be, however, remembered that these methods can give conflicting ranking in case of mutually exclusive projects because of their different implicit reinvestment rate assumptions. Under capital rationing, the firm would not be able to maximize its value as it would have to reject certain profitable projects for lack of funds. कोषों की कमी के कारण कैपिटल राशनिंग के अंतर्गत अनेक लाभकारी परियोजनाओं को अस्वीकार करना पड़ता है। Therefore, the objective under capital rationing should be maximize the value subject to the budget constraint. To achieve this, the firm should choose that combination of investment projects which sums up the maximum net present value.
फर्म का जो अल्टीमेट लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य होता है, लाभ को अधिकतम करना होता है। लाभ को अधिकतम करने की दो पद्धति है। एक तो अपने प्रोडक्ट पर लाभ अधिक मात्रा में लाभ की प्रतिशतता को बढ़ा देना, दूसरे प्रोडक्शन कास्ट को घटाना। जो सबसे सटीक माध्यम है लाभ के प्रतिशत को बढ़ाने से बाजार में, प्रतिस्पर्धी बाजार में मुकाबला कठिन होगा। प्रतिस्पर्धी बाजार में अन्य वस्तुओं के मूल्यों से तुलना, अन्य उत्पादों से तुलनात्मक दृष्टि से यदि आपका मूल्य, आपकी प्रोडक्ट का मूल्य अधिक रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बट कास्ट ऑफ रिडक्शन, ये रिडक्शन जो वस्तु की उत्पादन लागत है उसे घटाना कंपनी के हाथों में होता है, और पूंजी की लागत को घटाना भी एक पद्धति हो सकती है, एक व्यवस्था हो सकती है कि किस प्रकार से हम न्यूनतम लागत वाली पूंजी को व्यवसाय में विनियोग करें। ये सुनिश्चित करना, किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि किस मात्रा में ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाए तथा किस मात्रा में अंश पूंजी का प्रयोग किया जाए, या दोनों का बराबर मात्रा में प्रयोग किया जाए, अथवा किसी एक पूंजी का अधिक मात्रा में और दूसरी पूंजी का न्यूनतम कम मात्रा में प्रयोग किया जाए। इसके लिए संगठन की लाभदायकता, भावी लाभों का पूर्वानुमान महत्वपूर्ण होता है। यदि संगठन में भविष्य में अधिक लाभ होने की संभावना है तो ऋण पूंजी अपेक्षाकृत पूंजी का सरल और सस्ता माध्यम हो सकता है। किंतु यदि भविष्य में लाभदायकता में कमी आने की संभावना है तो ऋण पूंजी संस्था के लिए भार स्वरूप हो सकती है। अतः इन दोनों प्रकार की पूंजी के मध्य एक साम्य की आवश्यकता है, संतुलन की आवश्यकता है, और दोनों का बैलेंस्ड यूज किसी भी संगठन के लिए लाभकारी होगा।